you have learned in smaller circle, सबको पता रहता है. But how to equation, now finding equation of a circle. So you have three forms. One is standard form. Standard form is center is origin 0,0. अगर तुम्हारा center origin होता है 0,0, so distance formula, you know that a distance from the center to that point on the circle is always fixed. That is your radius. So अगर तुम वो distance formula निकालोगे, you will get this as an equation. Hence this is called the standard form of circle. Next is center radius form. Center radius form means obviously when the center is not 0, 0, we called it as center radius form. So if you have a center x, any other coordinate, so let us denote always center, we denote by h comma k if it is not 0, 0, and then the point on x, any point random is x comma y. Again distance formula से x minus h the whole square, यहाँ पे x minus 0 the whole square होता है, इसलिए वो x square हो जाता है. So this is your center radius form. So whenever you have later, इसके बाद जो तुम बोलते हो इसको एक्सपांड करके जो दूसरा फॉर्म है जनरल फॉर्म बोलते हैं उसको, तो जनरल इक्वेशन हम बाद में देखेंगे. पहले फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. सो आफ्टर एक्सपेंशन एक जनरल फॉर्म भी होता है सर्कल का, तो दैट विल बी स्टडिंग नेक्स्ट क्लास, या अभी ये खत्म एक्सरसाइज फर्स्ट हो जाए उसके बाद. So center radius can write it as x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Third is diameter form. So sometimes you might get help of diameter when the endpoints of diameter is given. No need to do some long process or find center and all that. You can straight away use diameter form to get the equation of circle. So what is diameter form? See, these endpoints of the diameter will be given. That time only we make use of diameter generally. So if endpoints are given, if you take any point on the circle, you know that angle in a semicircle is 90 degrees. Because this is 90 degrees, we know that product of their slope will be -1. ये हमने straight line में किया था, तो slope PA into slope PB will be -1. Slope निकालो, ये वहाँ पे shift करो, you will get this equation. Hence the diameter form is this: x minus x1 bracket x minus x2 plus y minus y1 bracket y minus y2 equal to 0. Suppose if you forget this, तुम draw करके ये निकाल के भी कर सकते हो diameter form. So based on these three concepts, let us start solving exercise 6.1. बहुत simple है. मैं questions दूंगी, तुम लोग answers बताओ, फिर नहीं आएगा वो सब मैं बताऊंगी. So that will keep you active also, और तुम्हें थोड़ा मजा भी आएगा. Screen is blur. अभी भी blur है क्या screen? अभी blur है. अच्छा रुक, एक काम करो ना, रीजॉइन करो ना. कल ऐसा हुआ था मेरे मेंस के साथ, मैं पढ़ा रही थी, तो रीजॉइन करने के बाद उनका क्लियर हो गया. Check out the screen, students. Is it blur now still? No ma'am. अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, वही रीजॉइन, और मैंने नेटवर्क भी अपना चेंज किया. I'll repeat one more time. What I have done is standard form x square plus y square equal to r square. इसको standard form बोलते हैं क्योंकि origin is the center. This is. If the center is not an origin, then we take center as h comma k, और हमेशा h comma k ही standard मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो ज्यादा करके हम यही अल्फाबेट यूज करते हैं, h comma k फॉर द सेंटर. फिर वो आगे कोनिक्स में भी हो, सेंटर अगर ओरिजिन नहीं होता है तो हम जनरली ये लेटर्स यूज करते हैं, h comma k. एंड द थर्ड वन इज डायमीटर फॉर्म.
When the endpoints of diameter are given, you can make use of this to find the equation of circle. What is diameter form? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. ये कैसे आया? End points है, take any point random on the circle. You know that angle in a semicircle makes, मतलब diameter subtends a right angle at any point on the circle. So because this is 90 degrees, the product of their slope, if two lines are perpendicular, the product of their slope is -1. Straight line is here. So बस उससे ये generate हुआ equation. So now we'll start with the exercise 6.1. Based on these formulas only, you have sums. Easy है. I list out the sums. I want answers from you. Okay. No chat. No, just check. ठीक है. Shall I erase this now? 6.1. I'll start. Done. All this is you will get in textbook easily. Okay, done now. Now, let us start with exercise 6.1. है page 129. First one, find equation of circle. I list out the sum and I'll give you time. क्योंकि ये easy है, बहुत simple है. You all will solve. With center, third वाला कर लूँ. Center at 2, -3 and radius 5. Fourth, center at -3, -3 and passing through point. See, look, for this case, generally expanded form तुम्हें expand करके ही final answers लिखना है. मतलब x minus h the whole square है, ये जैसे है x minus 2 the whole square. तो इसको ओपन करोगे और फिर आंसर लिखोगे. ओके, आई वांट एक्सपैंडेड फॉर्म एज एन आंसर. सेकंड का, these all are 1 mark 2 mark sums. Find center and radius of circle. I am doing the third one, x minus half the whole square. Although it is simple, you know you have 1 mark sum, 2 mark sum, 3 mark sum and 4 mark sum. Third, find equation of circle at A, B touching Y. हाँ, सेंटर हाफ है और -1/3, रेडियस 1/6. करेक्ट. तो ये तो ओरल है, 1 मार्क का सम ऐसा आ सकता है. सेंटर यू हैव टू राइट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. व्हाई वी डू दीज सम्स आल्सो, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में, और ये माइनस है तो कंपेयर करोगे तो दिस विल बी है हाफ एंड दिस इज, कभी कभी ये 1/3 लिख दिया तो यू विल गो रॉन्ग.
एंड रेडियस इज 1/6 क्योंकि r स्क्वायर होता है। फर्स्ट सेकंड और इसका आई जस्ट चेक द चैट। इसका आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर को तुम x2 लिखोगे चैट में तो चलेगा। आई विल अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x2 + y2 ये तो आने ही वाला है। यू आर डू इट। हाँ, x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x + 6y -12 करेक्ट। थर्ड का राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द आंसर। कभी कभी ऑल द सम्स आर इजी, साइन मिस्टेक हो जाती है, सिली एरर के वजह से मार्क्स जाते हैं, तो यहाँ पे तुम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना एमसीक्यू एवरी टाइम। -6y + 6y -12 = 0, दिस इज द आंसर, करेक्ट। इसका आंसर तो यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया है। करेक्ट, वेरी गुड। रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो इसका डिस्टेंस विल गिव यू रेडियस। तो इसका आंसर इज x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x + 6y + 9 = 0। अच्छा, डिस्टेंस 3 आ रहा है। रेडियस यहाँ पे 3 आ रहा है। So these all are very simple है, but थोड़ा सा है क्वेश्चन को। Find the equation of a circle at a, b touching y axis with center. Sorry student, मैंने यहाँ पे with center नहीं लिखा, obviously. Find the equation of a circle with center at a, b touching y axis. Yes, very good. This only I wanted to know. All of you should know that when it touches y-axis, definitely if it is touching y-axis, center is at a, b. So touching y-axis means तुम्हारा radius जो होता है ना तभी x coordinate होता है, उल्टा होता है। So second one I have skipped. उसमें दिया है at -2, 3 touching x-axis. So if it touch x-axis, that time the radius will be y coordinate. ओके मतलब उसका पॉजिटिव, रेडियस हैज टू बी पॉजिटिव, तो जो भी कोऑर्डिनेट है उसका मॉड। सो यस, योर रेडियस इज ए। अब तो पता है सेंटर दिया है, रेडियस ए है, ए के टर्म्स में ही आंसर आएगा। तो थर्ड का फर्स्ट आई विल राइट द आंसर अबव, आई विल इरेज दिस। यहाँ तक सबका हो गया। So third का first. Now you know radius is a. तो क्या आंसर मिलता है? x square + y square -2ax -2by + b square = 0. Check, this is the answer. Now do third sum. Center is on x-axis and passing through origin having radius 4. If center is on x-axis, you will say let the center be h, 0. Because it is on x-axis, your y coordinate will be 0. And it is passing through origin. So you have a point which is origin. And radius is 4. So distance between them will be 4. अगर इसको कुछ नाम दे रहे हो, center को O नाम दे रहे हो और point को A नाम दे रहे हो, so you can say OA is, distance OA is 4. ये H, OA distance आएगा H minus, करेक्ट, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। H minus 4, H minus 0 the whole square plus तो सैम्पलर है। अब भाई अब उसका सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा क्या है। So that means H square equal to 16
x की वैल्यू प्लस और माइनस 4 दोनों लेनी पड़ेगी ना, तो कोऑर्डिनेट है, रेडियस 4 रहेगा, पर इट कैन बी ऑन लेफ्ट एज वेल एज राइट। 26 गोली आती है, तो 26 गोली में कितना मेल्ट होगा? सर्कल कैन बी हियर 4, पूरा बंदा 0 गायब या अगर तो सारी -4, 0। पूरा बंदा गायब अगर तो सारी दोनों की सारी लग गई पॉसिबिलिटी, दोनों इक्वेशन लिखना होगा। ट्रेस So करना what है will ना be the answer? You will say the फाइट चल रही equations है are, हाँ एग्जाम में ऐसे लिखना, required equations आएगा ये केस में, x² + y² + 8x = 0 और x² + y² - 8x = 0। वो तुम x - h the whole square + y - k the whole square = r². If you substitute in that, you get this. I'll wait others for others also to finish. एक बार chat देख लीजिए। H वरुण सिर्फ 4 नहीं आएगा, प्लस और माइनस 4 लेना होगा, ओके, दोनों पॉसिबिलिटी, इट्स अ कोऑर्डिनेट। फोर्थ वाला क्वेश्चन आई राइट, इसका ही फोर्थ, दैट इज ऑल्सो अ नाइस सम। These all are 3 mark sum, yeah, sometimes 2. Center is at 3,1 and touching the line, the circle touches this line, touching line 8x - 15y + 25 = 0. You have to find the equation of circle only. यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन काम आएगा, 3,1 समवेयर हियर, अगर ये सर्कल है एंड दिस इज सम लाइन इट इज टचिंग। अभी हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। इफ इट इज टचिंग दैट लाइन वन स्लैब, इट इज अ टेंजेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट रेडियस? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट रेडियस? इट इज परपेंडिकुलर। तो इसको O नाम दे दो, इसको चाहे तो B नाम दे दो या A नाम दे दो। इट मीट्स एट पॉइंट A। यू विल से दैट OA is the radius, so distance OA कैसे find करोगे? Do you remember distance formula of a straight line? मैं खाली hint दे रही हूँ, करना तुम्हें ही है। If a point is here, x1, y1, straight line, and this is a perpendicular, and equation of this line you have. So what is the distance formula? Correct. अच्छा, Sudeep has already said. Good. तो तुम लोग को जिसको नहीं आता उनके लिए मैं लिख रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाता है। सो व्हेनेवर यू हैव अ लाइन टचिंग द सर्कल, you will always make use of distance formula which you have studied for a straight line. This is a straight line equation and this is a point outside it. So the perpendicular distance is given by this. So इससे तुम्हें radius मिल जाएगा। Once you get that OA, you have a center and you have a radius. Find its equation. क्या आंसर आता है? डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो a x के जगह मुझे ये पॉइंट डालना है, 8 × 3 - 15 × 1 + 25 whole divide by square root of 8², that is 64 + 15², that is 225। ये क्या आ रहा है देखो आंसर। ये 4 आ रहा है। सेवनटीन का है। Find its equation later after finding the distance. Equation क्या आ रहा है? 33/√10 आ रहा है। 33 कैसे आ रहा है? पॉइंट क्या है तुम्हारा? 3,1 है ना? 8 × 3 24 - 15 × 1 और प्लस 25। 24 + 25 ये दोनों प्लस है ना, तो ये 9 होगा, 49 -15, 9 - 5 4, 4 - 1 3, ये मुझे 34 आ रहा है। प्लीज चेक यू ऑल ऑल्सो। और 289 किसका है? 17 का स्क्वायर रूट है, तो 17 का डबल है ना ये,
17 2 जा 34, करेक्ट करेक्ट। तो हमें तो अच्छा सा खासा रेडियस मिल रहा है, रेडियस इज 2। एक मिनट, किसने मुझे ये डिस्टेंस भेजा है? गलत है। हाँ सिद्धार्थ, करेक्ट है तेरा, 2 आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन एरर, दैट्स व्हाई हियर इज अ गुड प्रैक्टिस। जो भी कॉलेज लेक्चर्स बैठता है उनको डेफिनेटली फायदा होता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे होता है। घर पे तो पूरा टाइम तो मेंस आईआईटी करते रहते हो, एटलीस्ट ड्यूरिंग लेक्चर इफ यू डू दीज सम्स, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अभी 12th में है, उसने कभी लेक्चर नहीं मिस किया, लाइक उसका पेपर बेस्ट होता है, वो जो लिखता है उसको ऑलमोस्ट फुल मिलता है हमेशा, एज पर बोर्ड ही राइट। मेनी मोर आर देयर, बट एक एडवांस का बच्चा है। Okay, radius is 2. Now it's very easy. X minus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square equal to 4. और तुम लोग सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर x square plus y square minus 6x minus 2y equal to 0. That would be the answer. देखो ये आंसर आ रहा है, x square plus y square minus 6x minus 2y plus 6. Are you getting this? ये टेक्स्ट बुक का ही आंसर है। So this sum was different, and as if while doing, you know, जो sum तुम्हें थोड़े different लग अभी एक कॉल आ गया था। ओके, अभी अभी ठीक है। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज, अभी से हैबिट रखना, 12th में स्पेशली टेक्स्ट बुक में ना स्टार सम्स या कुछ भी मार्किंग करना है जो तुम्हें क्लिक नहीं हुआ या तुम्हें थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा, और जो इजी है उसको कुछ मार्क मत करो। दैट विल हेल्प यू टू यू नो, तुम्हारा वो लिस्ट कम हो जाएगा टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि 12th में एक्सरसाइज में 20-25 सम्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल सम्स यू वर एबल टू डू इट, बट 5 सम्स तुम्हें थोड़े से डिफरेंट लगे, उसका स्टार्ट डिफरेंट था या डिफिकल्ट लगा, उसको अगर तुम 4 मार्क करते हो, so whenever next time you open the textbook और तुम्हें दिखेगा 4 वाले सम्स, तो तुम्हें पता चलेगा आउट ऑफ 25 you need to just practice these 5 सम्स, क्योंकि बाकी तो एकदम सिंपल है, तुम्हें इजीली फॉर्मूला आता है इसलिए क्लिक हो गया। दिस हैबिट इज वेरी नाइस, क्योंकि जब एंड ऑफ द ईयर होता है, जब पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, बोर्ड में एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, तो तुम्हें जस्ट गो थ्रू करना रहता है प्रीलिम्स या एग्जाम के लिए, तुम्हारा कंटेंट बहुत रिड्यूस हो जाता है, अरे मुझे इतना ही करना है, बाकी तो तुम लोग को आता है ऑलरेडी। सो दैट्स अ गुड हैबिट ऑफ डूइंग इट, मार्किंग इन द टेक्स्ट बुक। सो ऑलवेज आई टेल, प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक अलोंग विद यू। तो अभी से वैसे फॉलो करोगे तो इट्स गुड, जो तुम्हें क्लिक नहीं हुआ वही पढ़ाई करना है, बाकी तो तुम्हें आता है ऑलरेडी, बहुत सिंपल है, वो तो ऐसे भी आ जाने वाला है इफ यू नो द फॉर्मूला। ओके, आई होप दिस इज डन। नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट इज, अच्छा 4th वाला मैं होमवर्क दे रही हूँ, डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन है, आई मीन डिस्कस कर रही हूँ, करते नहीं है। 4th इज 2 इक्वेशन, if the equation of 2 diameter is given, so if this is 1 diameter, this is another diameter का equation, so it's easy, if the diameter जहाँ पे भी intersect हो गए वो तो center मिल जाएगा, so solve this simultaneously, you will get center, और radius 9 दिया हुआ है, radius is also given, just you have to find the center by solving the equation simultaneously. So this is homework 4th sum, ये 4th sum था, I've just discussed, equation of diameter is given, you have to just solve them and get the center. Once you get center, radius is given, you can use center radius formula and find the equation. So 4th is simple, 5th करते हैं। 5th is y equal to 2x is a chord of circle x square plus y square minus 10x equal to 0. So equation of circle is given and this is a chord. Find the equation of a circle with this chord as a diameter.
So right now this chord is not a diameter for this. So you have to find an equation of a chord with this chord as a diameter. So see, what you can do is, क्योंकि this is a chord of a circle, अगर if I substitute y equal to 2x in equation of circle, I will get the point of intersection of these two. तो सर्कल है और अगर ये कॉर्ड है, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, आई विल गेट दैट एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पर यही पॉइंट दूसरे सर्कल के लिए डायमीटर है. So if you have endpoints of the diameter, I will make use of diameter form. चलो पहले सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ क्या मिलता है. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड गेट द एंड पॉइंट. ये गिवन सर्कल है एंड दिस यू हैव टू फाइंड. So you have to find the equation of a circle whose this chord is a diameter. So हम diameter form use करेंगे. In short, मुझे ये coordinate find करके बताओ. Yes, नहीं 0,10 आ रहा है. मुझे कुछ और आ रहा है, चेक कर एक बार. जीरो कॉमा 10, हाँ 0,2 आ रहा है. 10 कैसे आ रहा था? 0 और 2 आ रहा है, x की वैल्यू करेक्ट. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू 0 और 2 मिलती है. सो व्हाट विल बी माय एंड पॉइंट? सो यू विल से एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर. चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हो ऐसे ही रफ फिगर. सो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज 0,0 क्योंकि y व्हेन x इज 0 y इज 0 एंड दूसरा if x is 2 y will be 4. So use diameter form to find the equation. So you will say diameter form let us state the formula. Exam में state करो तो अच्छी बात है. x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. Substitute and get the value. There may be different ways also to solve. काफी बच्चे सेंटर ढूंढ रहे थे क्योंकि इसके बाद हम जनरल फॉर्म करेंगे तो तुम्हें पता है सेंटर कैसे निकालते हैं और फिर एक पॉइंट से रेडियस निकाल के फिर सेंटर रेडियस भी निकालते. वो लंबा हो जाएगा. यू कैन डू दैट, इट्स अलाउड. डिफरेंट मेथड इज अलाउड इन एग्जाम. अगर ये नहीं क्लिक होता तुम अपना मेथड कर सकते हो, प्रोवाइडेड खाली स्टेप्स लिखो. हाँ, पर इसमें सेंटर की जरूरत ही नहीं है. मैं ऐसे बोल रही हूँ, जिसको करना है वो मेथड से कर सकता है. आई एम जस्ट टेलिंग क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, लेट अस यूज डायमीटर फॉर्म. दोनों भी आना चाहिए ना. सो दैट इज द रीजन. इट्स जस्ट ऑल्टरनेट वे. पता हो तो इट्स गुड फॉर यू. थोड़ा टाइम सेव हो रहा है इसमें, बट विच एवर वे यू डू इट्स कंप्लीटली ओके. तुम्हें जो इजी लगे वो मेथड करना. उसको सॉल्व कर लो, तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. जरूरी नहीं है हर बार हम सेंटर निकाले ही. ओके I'll wait and then go to 6th. हम खाली डिस्कस करेंगे. 6th is again homework. 7th 8th करके we'll stop. I hope this is done क्योंकि एक बच्चा खाली मैसेज करेगा but others are still doing, so I have to wait. I hope this is done, students. This is done. Done लिखो चैट में 2-3 बच्चे, तो I can move to the next sum. Okay, done. Thank you. Now 6th sum is easy. Oral है, MCQ में भी पूछ सकते हैं. Find the equation of a circle with radius 4. Radius 4 and touching both the axes and having center. Radius 4 है
टचिंग बोथ एक्सिस है और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी दिया है, सेंटर इज ऑन इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे रेडियस का है, मुझे खाली सेंटर बता दो ओरली। चलो चैट में लिखो, व्हाट विल बी द सेंटर? दीज आर द कंडीशन गिवन। रेडियस इज 4, इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। एब्सोल्युटली करेक्ट सिद्धार्थ, Siddhi, correct. So all of you know this. So this is homework. Center will be -4 -4 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगी, और क्योंकि बोथ एक्सिस होता है टच, तो डेफिनेटली यू कैन सी रेडियस तो दोनों ही होगा। So this is easy. 7th करते हैं। Find equation of a circle passing through origin. I am not writing entire statement क्योंकि तुम्हें टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना होता है। Passing through origin, किसका इक्वेशन फाइंड करना है? Passing through origin and having intercept 4 and -5 on coordinate axis. 4 और -5 on coordinate axis. What do you mean by that? Definitely एक पॉइंट 4 कॉमा ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करते हैं। Now center is origin. You have x coordinate, यहाँ पे x intercept is 4,0 and y intercept is नीचे कहीं पे रहेगा 0, -5. Okay. You have to find the equation of a circle. So obviously you need a radius. तो तुम्हारे पास यही है, इसको नाम दे दो, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको o नाम दे दो। Okay, sorry, it is center. Sorry. I made a mistake. It is passing through 0, 0. Center 0, 0 नहीं है. It is passing through 0, 0. Another is x intercept, y intercept. वो मैं पूरा ड्रॉ करोगे तो देख सकते हो तुम लोग. If it is my drawing is not that good, you can just imagine it is passing through 0 to 0. तो समझो ये 4,0 है, 0, -5 समवेयर हियर, यहाँ पे अगर वो टच कर रहा है, और ये 0, 0। अब सेंटर हमें नहीं पता है, तो सेंटर हमें लेना पड़ेगा, ये ओरिजिन ओ रखते हैं, हम इसको P रख देते हैं, PH, Q, इसको A और इसको B। तो इट्स बेटर, हमें 3 कोऑर्डिनेट है, एक लो तुम PO इज इक्वल टू PA, 0, 0 एक दोनों बार लोगे, 2 इक्वेशन मिलेगा, एंड लेंथ PO is equal to length. This is radius. Also length PO is equal to length PB. This will give you 2 equations and get the center. है ना? This is radius. इसका distance, इसका distance, इसका distance. तीनों distance equal है. PA, PB भी ले सकते हो, but वो easy नहीं पड़ेगा. Origin है तो वही लो ना. So PO is equal to PA and PB equal to PO equal to PA and PO equal to PB. This will give you, I think, one equation. This will give you another equation. Solve and get the center. Once you have center, you can find your radius. कितना टाइम है? 8th वाला. Try to do this. सेंटर एक्स एक्सिस पे नहीं है, प्लीज मेरे डायग्राम पे मत जाओ. सॉरी, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, मैंने पहले ही बोला था. दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस. सीधा आई एम जस्ट ड्रॉइंग h, k. वो फिर मिसगाइड करता है. A is 4,0. I have 3 points on the circle. एक B is 0, -5. Okay. And now I am using distance formula. X y axis के बिना. This is better. Try to find out this. Next वाला भी मैं बता ही देती हूँ. Find equation passing through 1, -4, 5, 2. 2 points दिया हुआ है and center is on this line.
दिस इज ऑल्सो सिमिलर इन द सेंस, दो इक्वेशन ही मिलेगी इसमें भी, तुम लोग फाइंड करो। सेंटर एच कॉमा के रखो, so therefore first equation will be, you can substitute here, this is my first equation. Also this is point A and B, this is O, so OA equal to OB. This will give you second equation, one more equation. After getting both the equation, you can find the center. Simultaneously solve करोगे तो h comma k मिल जाएगा। 7th और 8th का आंसर बताओ। You don't have to rejoin. If the time gets over, you can complete your sum. Next class we'll do the other exercise. 7th का आंसर किसी ने लिखा है? Let me see the chat. मैम passing through radius, पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना क्वेश्चन? वो मेरा डायग्राम कुछ रहेगा रॉन्ग, कुछ मैंने अभी चैट देखा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। So you have 3 points. The circle is passing through these 3 points. X square plus y square minus 4x plus 5y equal to 0. Very good. ये आंसर आना चाहिए। मेरे को इक्वेशन दो, बता सकता है वरुण? मुझे ये इक्वेशन बता सकता है क्या मिला? ऐसे तो 0 0 इजी पड़ेगा। आई विल फाइंड इट। पीओ ये h कॉमा के है, तो डिस्टेंस इसका तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा ना, इसका डिस्टेंस होगा h माइनस 4 द होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस 4h और k माइनस 0 प्लस 16 नहीं 8h होगा ना, h माइनस 4 द होल स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर। हाँ तो तुम्हारा h स्क्वायर k स्क्वायर कट हो जाता है, तो इधर से ही h मिल जाता है तुम्हें। ओके ओके ओके, इधर से ही h मिल जाता है, 8 टू द 16। अच्छा इधर से h मिल जाता है, इधर से k मिल जाता है, ये ज्यादा इजी हो जाता है विद ओरिजिन। यहाँ पे इक्वेशन 2 मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 0 0 लिया है, एक पॉइंट उसके साथ ही ले रहे हैं, तो h और k ऐसे ही मिल जाता है। व्हाट इज h कॉमा k? सेम वे यहाँ पे k क्या मिलेगा देख लो, 5 ना, 5 टू द 10, 10 k h स्क्वायर आएगा यहाँ पे और k प्लस 5 माइनस 8h का ना, हाँ 8h यहाँ पे आ गया। दिस विल बी प्लस 5 टू द 10k प्लस 25 and this will be h square k square only. वो कट हो जाता है इसके साथ h square k। तो k क्या मिलता है? 5 square is 25। k ऐसा कुछ मिलता है, देख लो, हाँ एक बार चेक कर लो, मैंने ओरली किया है। माइनस 2.5 मिलता है। Meeting will get over, you don't have to rejoin. Just check it out what you get to, but in similar manner only you will get. And this is the answer. Here you will get two equation. एक ये equation 1 है, OA equal to OB करोगे तो you will get equation 2. Solve it simultaneously, you will get h comma k. h comma k ये मैंने find out करके रखा है, -3,3 मिलता है when you solve. This is the answer. और रेडियस सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई भी एक OA ले लो, that will be a radius and find it out and solve it, complete it. Meeting will get over. ऐसे भी 12:30 लेक्चर ओवर हो रहा है। हाँ हमने रिज्वाइन किया था ना, इसलिए खत्म नहीं हुआ। ओ आई वाज वरीड क्या सीधा अभी खत्म हो जाएगा एनी टाइम। I hope this is clear. Complete it.